Great. Okay. Great, everyone. Let's start. So now in the first week, we are going to start with the basics. Now, if you know the basics, that's good for you. And you will also revise some other um, concepts. But if you do not know the basics, you will still understand what quantum computing basics are and the fundamentals are. So let's start with the overview of quantum computing. Okay, is there a question? Am I missing a question? Yeah, Sajad, we'll be giving the access. Okay, guys, I know that you guys are not getting the access for Google Classroom, but I will be giving you the access of Google Classroom right after this bootcamp. My team will do that. So just hold on to that. All right. So quantum computing is a cutting-edge field of computing that leverages principles from quantum mechanics to perform certain types of computations much faster than classical computers. So classical computers use bits as the basic unit of information, representing either A0 or A1. In contrast, quantum computers use quantum bits or qubits, which can exist in multiple states simultaneously due to principles and superpositioning and entanglement. Yes, Mr. Dawood? You have a question? Sorry, sir, it's a mistake, but I have a question. Is there any Pakistani based agency by government working on quantum computing? Not that I know of. I don't think so. So that's why we are the only private institute in Pakistan who is doing this. Anyways, so quantum computing kya hai? I'm going to say in Urdu and English both so that multiple people can understand as well. So quantum computing kya hai? आजकल के दौर में you can see that there is AI, artificial intelligence, and artificial intelligence is done on classical computers. Classical computers क्या होते हैं? जिस पर आप और हम अभी इस वक्त काम कर रहे हैं, आपके लैपटॉप्स, आपके डेस्कटॉप्स, सुपर कंप्यूटर्स. बहुत सारे लोग मिसकंसेप्ट करते हैं सुपर कंप्यूटर्स को क्वांटम कंप्यूटिंग से, लेकिन वो दोनों अलग चीजें हैं. सुपर कंप्यूटर्स आर क्लासिकल कंप्यूटर्स, बट they are mentioned as supercomputers because they can do calculations better. So classical computers क्या करते हैं कि वो बिट्स को यूज करते हैं, बिट्स की यूनिट इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं. या तो वो जीरो की इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं या वन की इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं. लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर हम क्वांटम बिट्स को यूज करते हैं, जिसको हम क्यूबिट्स कहते हैं. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम उसको कहते हैं, लेट मी जस्ट राइट दिस फॉर यू, क्यूबिट्स. ओके, तो हम उसको क्यूबिट्स कहते हैं. तो क्यूबिट्स क्या करते हैं कि वो एग्जिस्ट करते हैं मल्टीपल स्टेट्स में साइमल्टेनियसली ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशनिंग एंड एंटेंगलमेंट. अब आपने क्या करना है याद, आपने एक टर्म याद करनी है जिसको हम कहते हैं एस ई. एस ई. एस ई के मायने हैं सुपरपोजिशनिंग एंड एंटेंगलमेंट. ये दो चीजें, ये दो ऐसे लफ्ज हैं जो आपको मेक श्योर करना है कि आपने लिख लेना है. सुपरपोजिशनिंग, एंटेंगलमेंट, ये दो ऐसी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं. क्यूबिट्स हो गए आपके वो बिट्स जो कि रन करते हैं. आपको आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें पता चलेंगी, बट आपने ये चीजें याद रखनी जो मैं आपको बता रहा हूं. सो की प्रिंसिपल्स में सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं, सुपरपोजिशनिंग और एंटेंगलमेंट. सुपरपोजिशनिंग में क्यूबिट्स कैन एग्जिस्ट इन मल्टीपल स्टेट्स. अब क्यूबिट्स क्या होते हैं? आप में से किसी को पता है कि क्यूबिट क्या होते हैं? अगर पता है तो आप हैंड रेस कर ले. ओके, जीशान. States. सॉरी, जस्ट टू बी श्योर, आपने हैंड रेस करना है ताकि मैं आपका नाम लूं और फिर आप बोलिएगा. ओके, हसीब आप बताइए क्यूबिट्स क्या होते हैं आपकी नजर में? हसीब. ओके, नो प्रॉब्लम.
Daud? Sir, basically, the normally our commercial computers work on bits which are the combination of 1 and 0, but the qubits are combination of both and can operate between both of them. ओके, ये तो चलें थोड़ा हो गया बेसिक, लेकिन एक्चुअल क्यूबिट्स क्या होते हैं? जीशान बता सकते हैं? फॉर मी क्यूबिट जो है ना, जो क्यूबिट और क्लासिकल बिट में जो डिफरेंस है, क्लासिकल बिट एट द सेम टाइम उसकी कोई एक स्टेट होती है, वेयरएज क्यूबिट जो है उसकी स्टेट्स टाइम टू टाइम चेंज हो रही है, सुपरपोजिशन एग्जिस्ट करती है उसके अंदर, जो कि हमारे क्लासिकल बिट में नहीं है। ओके, गुड। हसीब का आ रहा है टू जंप थ्रू स्टेट्स। अच्छा, देयर वाज समवन एल्स। कंदील, यू हैव समथिंग टू से? Yes, I think so. It was sorry. I think so. But my understanding is it's just like the states. States. Acha, my question was a little different. Electrons occupy different states. So in qubits, it's just like the spin states. थोड़ा सा आप एडवांस चले गए, लेकिन मैं आपको बता देता हूं मेरा मतलब क्या था क्वेश्चन करने का। देखें, क्यूबिट्स जो होते हैं वो होते हैं फोटॉन्स। ओके, यस, फोटॉन्स। सो फोटॉन्स को आपने यूज करना होता है। आई एम प्रीटी श्योर एवरीबडी नोज व्हाट फोटॉन्स इज। अब फोटॉन्स के अंदर देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्यूबिट्स। सो वी हैव सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स, we have trapped ions, we have photonic qubits, we have spin qubits, we have nuclear magnetic resonance qubits, we have NV centers and diamonds. So इस तरह के 6 किस्म के qubits होते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा जो मशहूर qubits हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि they are very famous, they are super conducting qubits, ठीक है। सुपर कंडक्शन और सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स, these are the most famous ones, and these are all photons, protons, neurons and these kinds of elements. So superposition क्या करती है? Qubits can exist in multiple states at the same time. This allows quantum computers to process a vast number of possibilities simultaneously, providing exponential parallelism. Superposition क्या करता है कि वो इन सारे क्यूबिट्स को, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पर शो करता हूं। लेट्स गो ऑन टू empty slide. Okay, let's go this one. Okay, so let's remove this. So let's suppose कि हम इसको एक क्यूबिट मान लेते हैं, ठीक है। दिस इज 1 क्यूबिट और ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन अपने साथ कैरी कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसके साथ साथ एक और क्यूबिट ले आते हैं और इस तरीके से और भी क्यूबिट्स हैं। अब ये क्यूबिट्स क्या करते हैं, ये जब मिल के एक साथ आते हैं एक जगह पर, ये सारे क्यूबिट्स, उनको हम कहते हैं सुपरपोजिशनिंग, ठीक है। तो जितने भी क्यूबिट्स हो, चाहे 1 क्यूबिट हो, 2 क्यूबिट हो, 4 क्यूबिट हो, 100 क्यूबिट हो, 1000 क्यूबिट हो, वो जब एक जगह पे जमा हो जाते हैं एक कंडीशनल पावर के साथ, उसको हम सुपरपोजिशनिंग कहते हैं, ठीक है। तो आपने ये बात याद रखनी है। अब जी कंदील। सर, जैसे आपने मेंशन किया कि ये एक जगह पे कंबाइन होते हैं, देन वी कॉल देम एज द सुपरपोजिशन। सो माय क्वेश्चन इज हाउ दे गेट देमसेल्व्स टुगेदर। गुड क्वेश्चन। उसके लिए हम दूसरी तरफ चलते हैं, जो हमने रह गया है जो पढ़ना, दैट इज द एंटेंगलमेंट। नाउ द क्यूबिट्स कैन बिकम एंटेंगल्ड, मीनिंग द स्टेट ऑफ 1 क्यूबिट, यस, वेव्स की सुपरपोजिशन की तरह, बिल्कुल। So qubits can become entangled, meaning the state of 1 qubit is directly related to the state of another, regardless of the physical distance between them.
This enables correlations and information transfer that classical systems cannot achieve. अब होता क्या है कि ये जब सारे क्यूबिट्स एक जगह पे एग्जिस्ट करते हैं, सुपर पोजिशनिंग हो जाती है उनकी, तो वो एंटैंगल करते हैं. एंटैंगल मतलब एक दूसरे से बात करते हैं, इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं, एक दूसरे को इंफॉर्मेशन देते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट इंफॉर्मेशन डिस्टेंस डज नॉट मैटर बिटवीन देम. डिस्टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता. सो हो सकता है कि एक क्यूबिट कनाडा में हो और हो सकता है एक क्यूबिट पाकिस्तान में हो. ठीक है. अब ये दोनों क्यूबिट्स एक दूसरे को एंटैंगलमेंट के थ्रू इंफॉर्मेशन पास ऑन कर सकते हैं. कितने लोग हैं यहां जिन्होंने टेलीपोर्टेशन के बारे में सुना है? हैंड रेस करें. अच्छा, और अब मैं जो बात बताने वाला हूं उसके बाद फिर आप हैंड रेस कीजिएगा, तो फिर मुझे बताइएगा कितने लोग ये समझते हैं कि टेलीपोर्टेशन का मतलब है कि आप एक जगह से दूसरी जगह एक इंसान को ट्रांसफर कर रहे हैं. हैंड रेस करें. कितने लोग ये समझते हैं? हैंड रेस करें कि टेलीपोर्टेशन का मतलब है कि एक इंसान को एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर सकते हैं, जिसको हम बेसिकली कहते हैं कि वो बैक इन टाइम भी चला जा सकता है, या फ्यूचर भी देख सकता है, बैक इन टाइम भी जा सकता है, डिफरेंट डायमेंशंस में जा सकता है. ओके, सो वी हैव 7 पीपल हु से दैट. ठीक है, मैं आपको एक मिसकंसेप्शन क्लियर कर देता हूं कि टेलीपोर्टेशन कभी भी, या इट्स लाइक अ वर्म होल, टेलीपोर्टेशन कभी भी एक इंसान को एक जगह से दूसरी जगह नहीं कर सकती. The only one thing that can give you information from one place to another is what? Is qubits. जी नाबिया. Isn't like with quantum teleportation a method of transferring the quantum state? Like you don't actually transfer the matter, you transfer the qubit state, right? Exactly. So that's what I'm explaining. Okay, for example, what is happening now is that people are working on teleportation through the black hole. Now, how that's going to happen is कि हम black hole को cross नहीं कर सकते हैं, right? We can't cross the black hole. But what we could do is we could send a qubit that can give us information from the other side of the black hole to us. क्योंकि again through the phenomena of entanglement. So entanglement के through आप इसको कर सकते हो. Yes, Naima? Naima, you have a question? Yes, sir. Am I audible now? Yeah, you're audible. Okay. So what I was asking is कि आपने जैसे अभी बताया कि for entanglement there needs to be a superposition, and for superposition the qubits needs to come close to each other. So first, does it mean that qubits are at one place and then they are separated? Okay, देखें, सुपर पोजिशनिंग का मतलब ये होता है कि अगर एक क्वांटम कंप्यूटर है कनाडा के अंदर, ठीक है, और एक क्वांटम कंप्यूटर है पाकिस्तान के अंदर, तो इन दोनों क्वांटम कंप्यूटर्स के अंदर जो क्यूबिट्स हैं उनको सुपर पोजिशनिंग पहले क्रिएट करनी होगी, वो पावर क्रिएट करनी होगी ताकि वो मल्टीपल स्टेट्स के अंदर सेम टाइम पे एग्जिस्ट कर सकें. पहले तो उनको करना है ना. पहले तो देखें, इसको हम और आसान अल्फाज में इस तरह कह सकते हैं कि यू टेक अ ग्रुप ऑफ पीपल, आपने लोगों को लिया और एक ग्रुप में ऐड कर दिया. ठीक है, अब कोई एग्जाम हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब एग्जाम के अंदर आपने कहा कि एक बंदे को या एक ह्यूमन बीइंग को मैं लेकर आती हूं या लेकर आता हूं और उससे कहता हूं कि वो एग्जाम दे दे. ठीक है, और मैं आपको ऑप्शन देता हूं कि नहीं, आप 10 लोग ला सकती हैं और वो 10 लोग एक ही एग्जाम को दे सकते हैं. तो आपके लिए बेहतर क्या होगा? वो 10 लोगों को एक साथ लाना, राइट, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन मिले और एक बंदे पे हम डिपेंड ना करें. इसी तरीके से क्यूबिट्स जब अपनी सुपर पोजिशनिंग लेते हैं,
they take it at the same time but they are existing in the multiple states. वो different multiple states के अंदर exist कर सकते हैं at the same time. Entanglement क्या होती है? Kandil, sorry, if anybody has a question they can put it into the message section, वरना वो फिर डिले होता जाएगा, काफी लंबा होता जाएगा लेक्चर, तो फिर मैं क्वेश्चन को देख लूंगा और मैं उसको आंसर करता रहूंगा. सो एंटेंगलमेंट क्या है कि एंटेंगलमेंट उसको पास ऑन करती है इंफॉर्मेशन को. एंटेंगलमेंट क्या करती है? मीनिंग ऑफ द स्टेट के वन क्यूबिट डायरेक्टली रिलेट्स टू द अदर रिगार्डलेस ऑफ द फिजिकल डिस्टेंस. अब जब हमने एंटेंगल करना है कनाडा के क्यूबिट्स को और पाकिस्तान के क्यूबिट्स को, तो फिर हमें उनको एंटेंगलमेंट प्रोसेस के थ्रू लाना पड़ेगा रिगार्डलेस ऑफ देयर फिजिकल डिस्टेंस. तो ये दो डिफरेंट चीजें. Kandil, you can put your question into the messaging. I'll see the question and then I'll answer. Okay? तो यहां तक हम क्लियर हैं, आगे चलते हैं. Okay. Yes, that would be much better. ठीक है. So quantum gates. So quantum computers use quantum gates to manipulate qubits. These gates perform operations that exploit the principles of superpositioning and entanglement to perform complex computations efficiently. अब gates क्या होते हैं? आमतौर पे इंसान when they hear about gates, उनको लगता है कि ये कोई गेट है, नो, कोई शायद गेट होंगे जिसके थ्रू जाता होगा क्यूबिट और वो उसको मैनिपुलेट करते होंगे. ऐसा नहीं है. गेट्स बेसिकली वो बीच की दीवार होती है जो क्यूबिट्स के बीच में उनको चेंज करती है, उनकी चेंजिंग्स को परफॉर्म करती है. सो फॉर एग्जांपल मैंने क्यूबिट को फ्लिप करना है, मैंने क्यूबिट को सुपर पोजिशनिंग में लाना है. यस, दीज आर ऑल रिलेटेड टू लॉजिकल गेट्स. यस दे आर. सो मैंने इनको एंटेंगल करना है, इनको सुपर पोजिशनिंग में लाना है, इनको फ्लिप करना है, इनको मैंने यूज करना है पैरेललिज्म के लिए, या मैंने ओरेकल के लिए यूज करना है, या जिस चीज के लिए यूज करना है मैं गेट्स को यूज करूंगा. और मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि गेट्स किस तरीके के दिखते हैं IBM क्वांटम कंप्यूटर के ऊपर करके. तो गेट्स को हम आगे आने वाले जो क्लासेस हैं उसके अंदर हम डिस्कस भी करेंगे और बताएंगे भी कि गेट्स किस किस किस्म के होते हैं. सो क्वांटम पैरेललिज्म, क्वांटम एल्गोरिथम्स कैन प्रोसेस मल्टीपल पॉसिबिलिटीज साइमल्टेनियसली, offering the potential to exponential speed up, and in certain types calculations such as factoring large numbers, databases, solving optimization problems. पैरेललिज्म ये होता है कि बहुत चीजों को एक साथ करना. अब जो हमारे क्लासिकल कंप्यूटर्स होते हैं दे आर नॉट दैट केपेबल of doing things simultaneously, right? So what you're going to do is you're going to see that when you want to do large numbers of factorization, search large number of databases, or solve any kind of optimization problems, or if you want to search for problems, then you can use quantum parallelism and you can use all of these factors. और इसके लिए algorithms हैं. Now I'm sure कि आप लोग इतना well versed हैं कि AI के अंदर बहुत सारे algorithms होते हैं जिनको हम यूज करते हैं. उसी तरीके से हम क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर भी algorithms को यूज करते हैं, लेकिन they are called quantum algorithms, जिसको हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे भी कि वो कौन कौन से हैं. अच्छा जी. So challenges and considerations. So decoherence, error correction, scalability, applications. Decoherence, quantum systems are sensitive to their environment, leading to a loss of quantum information known as decoherence. Maintaining qubit stability over time is a significant challenge in building practical quantum computers. ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, decoherence. और मैं आपको बताऊं कि अगर आज मुझसे कोई पूछता है कि सबसे ज्यादा हाईली पेड जॉब क्वांटम कंप्यूटिंग में किस प्रोफेशन के अंदर या किस सेक्टर के अंदर है, वो एरर करेक्शंस के अंदर है, वो डीकोहेरेंसेस के अंदर है, स्केलेबिलिटी के अंदर है. क्योंकि आज भी क्वांटम कंप्यूटर्स चाहे कितना ही लोग उसको इन्वेस्ट कर लें,
उसके अंदर, वो स्टिल उनके अंदर एरर्स आ जाते हैं, उनके अंदर सेंसिटिविटी है, और उनकी सेंसिटिविटी एनवायरनमेंट से भी हो सकती है। सो अगर मैं इसको आसान लफ्जों में कहूं तो इफ देयर इज अ क्वांटम कंप्यूटर दैट इज इन अ लैब, अगर इंसान उस लैब में चल भी रहा है तो उसके चलने की आवाज या इवन हवा की आवाज से भी एरर क्रिएट हो सकता है क्यूबिट्स के बीच में, डिकोहेरेंसेस आ सकते हैं। इसीलिए स्केलेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि लार्ज स्केल क्वांटम कंप्यूटर्स को बनाया जाए विद सफिशिएंट नंबर ऑफ क्यूबिट्स, ताकि वो जितने ज्यादा, अब ये बात आपने याद रखनी है, इसको प्लीज लिख लीजिएगा, ये आगे बहुत काम आएगी आपको, कि जितने ज्यादा क्यूबिट्स होंगे उतना ज्यादा बेहतर आप कॉम्प्यूटेशंस को परफॉर्म कर सकेंगे। तो इसीलिए आजकल लोग जो हैं, जो जितनी भी कंपनीज हैं, दे आर क्रिएटिंग लार्जर स्केल क्वांटम कंप्यूटर्स विद सफिशिएंट क्यूबिट्स। जैसे इफ यू टॉक अबाउट IBM is now going towards 1,000 qubits speed, though they allow you to use 127 qubits for free, but their paid are around 400 qubits somewhere, but they're shifting themselves to 1,000 qubits. बिल्कुल, माइक्रोसॉफ्ट ने भी किया है और गूगल ने भी एक अभी चिप निकाली है जिसको कहते हैं विलो चिप। आप उसको जाके सर्च कीजिएगा उसके बारे में, आई विल राइट इट राइट हियर फॉर यू, इट्स कॉल्ड द विलो चिप, so you can go see that and read about that. So decoherence, error correction, scalability, ये सब बहुत जरूरी हैं एक क्वांटम कंप्यूटर को वर्क करने के लिए। क्वेश्चन ले लेते हैं। You have mentioned that qubits get entangled. Does it depend on the type of information, like similar type of information get entangled in one state, or other information gets entangled in the other states? Does quantum entanglement depend on the nature of information that is being superimposed? Yes, बिल्कुल। देखिए, ये तो आपके एल्गोरिदम के ऊपर डिपेंड करेगा। It will depend on your algorithm and what kind of information you want to extract from a quantum computer. So if you're talking about predictions, मैं आपको चलें एक एग्जांपल दे देता हूं यहां पर। आज से 6 महीने पहले हमने एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसके अंदर हमने 3 चीजों के बारे में बताया। हमने पहली चीज हमने ये बता दी थी कि किस टाइम पर, किस दिन पर, किस जगह पर, कब चांद निकलेगा ईद के लिए, रमजान के लिए और बकरा ईद के लिए। वो हम 6 महीने पहले बता चुके थे। उसके अलावा हमने डिजास्टर्स के बारे में बताया। आज जो आप डिजास्टर देख रहे हैं सवात में और इन सारी जगहों पर जो डिजास्टर्स और जो फ्लडिंग हो रही है, उसके बारे में हम आज से 6 महीने पहले ही बता चुके थे। तो 6 महीने पहले वार्न कर दिया था विद एक्यूरेट मंथ कि किस मंथ के अंदर होगा। ये हमने कैसे किया? क्वांटम एल्गोरिदम्स के थ्रू, डेटा सेट्स के थ्रू, और उससे हमने अज्यूम किया कि क्या चीज होने वाली। जब अर्थक्वेक्स बहुत ज्यादा आना शुरू हो गए तो हमने उस टाइम पर भी अर्थक्वेक्स को भी ऑलरेडी हम प्रेजेंट कर चुके थे, पहले ही उसके बारे में बात कर चुके थे कि ये होने वाला है। ये सारी चीजें आपके डिपेंड करेगा कि आप क्या चीज करना चाहते हैं, किस चीज के थ्रू आप लर्न करना चाहते हैं या किस चीज का रिजल्ट लेना चाहते हैं क्वांटम कंप्यूटर से। दैट विल डिपेंड ऑन व्हाट यू आर एडिंग इन। नाउ a single qubit can have superpositioning existing in multiple positions at the same time before getting observed. Is it necessary for multiple qubits to come close? No, it's not necessary. They just need to be in a superposition. It's not necessary कि वो करीब आए, वो superposition में भी हो सकते हैं। और superpositioning create करने के लिए आपको गेट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। Okay. So quantum computing harnesses the principles of quantum mechanics to revolutionize the way we perform computations. Unlike classical bits, which can only exist in state of 0 and 1. अब ये बात आपने दोबारा याद रखनी है कि 0 और 1 के स्टेट के अंदर क्लासिकल computations होती हैं, जिनको हम क्लासिकल बिट्स कहते हैं। ठीक है। और क्यूबिट्स एडवांटेज जो होता है वो ये होता है कि वो सुपर पोजिशनिंग के थ्रू अलाउ करते हैं मल्टीपल स्टेट्स को साइमल्टेनियसली। तो 0 और 1 साथ हो जाते हैं। जब हम बात करते हैं कि हमारे पास 2 इंफॉर्मेशन है, लेट्स टेक द पेन राइट हियर। सो 0 हो गया आपके पास एक इंफॉर्मेशन,
और 1 हो गया आपके पास एक इंफॉर्मेशन। अब क्लासिकली इन दोनों को अलग अलग तरीके से मेजर किया जाता है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर इन दोनों को एक साथ मेजर किया जा सकता है। तो 0 1 1 1 0 0 1 0, ये सारे जो बिट्स की जो इंफॉर्मेशन है, जो स्टेट्स हैं, उनको आप मेजर कर सकते हैं एक साथ, आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। और इन सारों को भी आप एक साथ कर सकते हैं। तो 0 1 1 1 0 0 1 0 को भी आप एक साथ कर सकते हैं, बाइनरीज जो है। ओके, let me just erase all of this. Good. अब थोड़े से हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से एल्गोरिदम्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और जिसके बारे में हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर काम करेंगे जिनके ऊपर। तो इनमें से सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम शोर्स एल्गोरिदम है। ये एल्गोरिदम जो है वो इंटेग्रेशन फैक्टराइजेशन के लिए यूज होता है, इंटेगर फैक्टराइजेशन के लिए यूज होता है, और ये सबसे ज्यादा क्रिप्टोग्राफिक स्कीम्स के अंदर भी यूज होता है। अब क्रिप्टोग्राफिक क्या है? क्वांटम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी, और क्रिप्टोग्राफी के अंदर भी हम बात करते हैं QKDs की, जो कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर होती हैं। शयान का क्वेश्चन है, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड कैन यू जस्ट ब्रीफ सुपरपोजिशन एंड एंटेंगलमेंट इन अ फ्यू वर्ड्स। देखें, अगेन मैं आपको बता दूं, सुपरपोजिशनिंग जो है वो जब क्यूबिट्स को आप एक जगह पे कर लें, उसको सुपरपोजिशनिंग कहते हैं, ताकि वो रेडी हो जाएं, एक्टिवेट हो जाएं। और एंटेंगलमेंट जब है जब आपने उनके ऊपर कॉम्पिटिशंस करने, जब वो रेडी हो जाते हैं सुपरपोजिशनिंग के थ्रू, तो आप एंटेंगलमेंट करते हैं उनकी, ताकि वो एंटेंगल्ड होकर मजीद आगे कंप्यूटेशन को कर सकें, कंप्यूटेशंस को रन कर सकें। ये दोनों चीजें आसान अल्फाज में। However, quantum computing faces significant challenges. Decoherence, the loss of quantum information is due to interactions, poses a major obstacle. Researchers are actively working on error correction techniques to mitigate these challenges and maintain the stability of qubits over time. Again, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारी अगर मुझसे अगर आज कोई पूछे कि सबसे बेस्ट पोजीशन क्या है या सबसे बेस्ट जॉब पोजीशन क्या है क्वांटम कंप्यूटिंग में, तो मैं हमेशा कहता हूं एरर करेक्शंस। क्योंकि अभी भी, एज मैंने जैसे पहले भी आपको मेंशन किया, कि बहुत सारे क्वांटम कंप्यूटर्स जो हैं, दे आर प्रोन टू एरर्स एंड दे आर स्टिल प्रोन टू डीकोहेरेंसेस, which actually makes a big loss of your information. तो आप अगर कोई एल्गोरिदम इंप्लीमेंट करने के लिए जाते हैं, तो एरर की वजह से बहुत सारी आपकी कॉम्पिटिशंस डिस्टर्ब हो जाती हैं, वो करेक्टली एक्यूरेटली इंफॉर्मेशन नहीं दे पाती। So that is why error correction is an important aspect. So despite these challenges, there has been remarkable progress. जैसे मैंने आपको बताया, companies like IBM, Google, Rigetti, all of these companies have created quantum computers, and their supremacy for quantum milestone has gone a larger way. बहुत ज्यादा अचीव कर चुके हैं वो अब, और मजीद कर रहे हैं, ताकि ये एरर करेक्शंस और ये कंप्यूटेशनल पावर और मजीद बेहतर हो सके। थोड़ा सा हम, जी, आई विल शेयर दीज स्लाइड्स एंड ऑल्सो द रिकॉर्डिंग। सो जब आप रिकॉर्डिंग में जाओगे तो स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी। द हिस्टोरिकल, अब थोड़ा सा जरा हिस्ट्री के बारे में बात करें। मैं आपको एक और चीज बताऊं, आप में से कितने लोग एल्बर्ट आइंस्टाइन के फैन हैं? हैंड रेस करें। बस 10 लोग, बाकी लोग नहीं है फैन। ठीक है, और कितने लोग जो है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन को सही नहीं मानते? हैंड रेस करें। कोई भी नहीं मानता उनको गलत? आयजा, आप मानती हैं उनको गलत?
हॉकिंग ने तो उनको रॉन्ग प्रूफ किया ही था, लेकिन चले मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। तो आपको पता है एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक बहुत मशहूर जुमला है जो उन्होंने कहा इफ इन द फ्यूचर, जी जाहिद, सर वो जो मैं सॉरी मैं आपकी बात करता हूँ, द गॉड नेवर प्ले डाइस, क्या आप एक्चुअली की बात कर रहे हैं? जब ये चीज प्रूव हो गई तो एल्बर्ट आइंस्टाइन उस चीज को मान गए और उनको मानना ही पड़ा जब ये चीज प्रूव हुई। तो ये एक छोटा सा फैक्ट था जो मैं आपको बताना चाह रहा था। बट अर्ली 20th century के अंदर द बर्थ ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स हैपेंड विद कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम फिजिसिस्ट लाइक मैक्स प्लैंक। अच्छा, मैक्स प्लैंक का मैं आपको एक और बताता हूं। किसको प्लैंक इक्वेशन पता है? यहां पर हैंड रेस कर ले। प्लैंक इक्वेशन, ओके। शमैम, आप मुझे बता सकती हैं प्लैंक क्या चीज होती है, इक्वेशन? या नाबिया या अफान, आप तीनों में से कोई बता सकता है? रेडिएट के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। Energy is equal to the Planck's constant into frequency. And what's that frequency? Frequency of the photon. Can I? ओके। और दूसरा किसने कहा कि कैन आई? Am I audible? जी जी नाबिया, आई कैन हियर यू। जी, दूसरा कौन कह रहा था? It was me. यस जरार। It was each the frequency of the frequency was of radiation. So how does 14 come in Planck constant? 14 की क्या रेलेवेंस है Planck constant में? Does anyone know? Anyone? चलें, ये फिर आपको जाके सर्च करना चाहिए, क्योंकि प्लैंक कांस्टेंट के इक्वेशन के ऊपर क्वांटम वर्ल्ड डे मनाया जाता है 14th अप्रैल को। और 14th उन्होंने क्यों रखा है, वो प्लैंक इक्वेशन के अंदर एक उसका कोरिलेशन है, तो आप उसको जाके पढ़ लीजिएगा। सो प्लैंक, मैक्स प्लैंक ने, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, नील्स बोर ने, एरविन श्रोडिंगर ने। एरविन श्रोडिंगर का अपना एक एल्गोरिदम है जिसको हम श्रोडिंगर एल्गोरिदम कहते हैं, और वो भी हम पढ़ेंगे। और उन्होंने उस एल्गोरिदम को एस्टैब्लिश किया था। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स governing the behavior of the particles at the quantum level, concepts such as superposition and entanglement, which are crucial to quantum computing, emerged during this period. तो अर्ली 20th century के अंदर ये दोनों चीजें जो हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं सुपरपोजिशनिंग और एंटेंगलमेंट, वो स्टार्ट हुआ। 1980s के अंदर दो लोगों ने, फिजिसिस्ट डेविड ड्यूश एंड रिचर्ड फेमन, और फेनमैन प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम कंप्यूटर्स, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था इसका। और ड्यूश जो हैं, डेविड ड्यूश, उनके ऊपर भी एक एल्गोरिदम है जिसको हम ड्यूश जोसा एल्गोरिदम कहते हैं, उन्होंने भी, उनकी भी कॉन्ट्रीब्यूशंस थी। ड्यूश डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ ए क्वांटम ट्यूरिंग मशीन लेइंग द थियोरेटिकल ग्राउंड वर्क फॉर क्वांटम एल्गोरिदम्स। सो इसीलिए उनका ड्यूश जोसा का एल्गोरिदम जो है वो बहुत फेमस है। 1990s के अंदर पीटर शोर ने शोर्स एल्गोरिदम बनाया, जो के कैपेबिलिटी रखता था साइबर सिक्योरिटी के लिए और फैक्टरिंग लार्ज नंबर्स के लिए। ये उन्होंने किया। और आज इत्तेफाक की बात यह है कि जब भी हम ऐसे लोगों की बात करते हैं, या तो वो इस दुनिया में होते नहीं हैं या वो जिंदा ही नहीं होते। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पीटर शोर आज भी जिंदा हैं और MIT के अंदर काम कर रहे हैं। तो दैट्स अ गुड थिंग कि जिन्होंने एक इतना बड़ा एल्गोरिदम क्रिएट किया वो आज भी जिंदा हैं, एंड पीपल कैन एक्चुअली गो talk to him and speak with him. So Peter Shor ने
1990s के अंदर ये इंट्रोड्यूस करवाया. So the first quantum algorithm was proposed by David Deutsch, a mathematician. With the mathematician Richard Jozsa, presented the first quantum algorithm outperformed classical counterpart. 1996 के अंदर दोनों ने एक एल्गोरिथम बनाया जिसको हम ड्यूस जोजा एल्गोरिथम कहते हैं, और उस एल्गोरिथम ने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जो कि एक क्लासिकल एल्गोरिथम नहीं कर पाता था. फिर एक आया जिसको हम कहते हैं 21st सेंचुरी के अंदर एडियाबैटिक क्वांटम कंप्यूटिंग, जहां पर रिसर्चर्स MIT के एडवर्ड फरही and his colleagues explored the concepts of adiabatic quantum computing. This approach aims to solve optimization problems involving different quantum systems, easily prepared initial states. फिर D-wave systems आया, quantum annealing आया 2000s और आज तक आ ही रहा है D-wave systems. और एक कंपनी भी है D-wave जो कि इस पे पर काम कर रही है अभी मजीद. NVIDIA भी कर रही है और बहुत सारी और भी कंपनीज हैं जो क्वांटम एनीलिंग के ऊपर काम कर रही है. सो ये थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री है जो कि हम समझ सकते हैं. IBM क्वांटम इनिशिएटिव आया 2010 में. IBM, गूगल और इन सब लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया और इनकी इन्वेस्टमेंट्स की वजह से आज हमें क्वांटम कंप्यूटर जो है वो अवेलेबल है और बहुत अच्छी स्पीड पर अवेलेबल है. अब क्वांटम सुप्रीमेसी में आगे लोग और भी मजीद काम कर रहे हैं. जैसे मैंने आपको कहा था विलो चिप के बारे में आप पढ़िएगा जाकर कि विलो चिप जो है वो गूगल की लॉन्च की हुई एक चिप है जो कि एरर करेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से आउट परफॉर्म करती है और जिस किस्म का टास्क वो कर सकती है वो प्रोसेसर कर सकता है विलो चिप का, शायद 71 गजिलियन ईयर्स के अंदर भी क्लासिकल कंप्यूटर इस चीज को नहीं कर पाएगा. एक और मजे की बात मैं आपको बताता हूं. कौन ये समझता है, हैंड रेज कीजिएगा, कौन ये समझता है या 10 70 मिलियन ईयर्स, मैंने और कम बोल दिया तो 70 मिलियन पे चला गया. सो कौन ये समझता है कि क्वांटम कंप्यूटर को हैक किया जा सकता है? हैंड रेज करें. कितने लोग समझते हैं कि क्वांटम कंप्यूटर हैकेबल है? ओके, ठीक है, 4-5 लोग समझते हैं. और कितने लोग समझते हैं कि वो अनहैकेबल है? हैंड रेज करें. Willow chip can solve it in 3 seconds. दाऊद, गुड. तो मैं आपको बता दूं कि क्वांटम कंप्यूटर दुनिया की वाहिद टेक्नोलॉजी है जो कि अनहैकेबल है, हैक नहीं हो सकती. ठीक है, और वो क्यों नहीं हैक हो सकती? उसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है सुपर पोजिशनिंग और एंटेंगलमेंट का. अब जैसे ही एक हैकर, आपको ये पता होगा कि हैकिंग के लिए, यस, नॉट इवन फ्रॉम अनदर क्वांटम कंप्यूटर, यही तो चीज अभी मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं. जैसे ही एक आजकल के जमाने में हैकिंग जो होती है वो किस तरीके से होती है? एक कंप्यूटर पे बंदा बैठा दूसरे के सर्वर में गया, उसने हैक किया, कोडिंग की और वो सिस्टम हैक हो गया, साइबर सिक्योरिटी को उसने बाईपास कर दिया. लेकिन इन सारी चीजों को करने के लिए वो एक एल्गोरिदम को यूज करता है. बगैर एल्गोरिदम के हैकिंग पॉसिबल नहीं होती. क्वांटम कंप्यूटर दुनिया की वाहिद एक टेक्नोलॉजी है कि जिसके अंदर आप जैसे ही क्वांटम कंप्यूटर का एग्जैक्ट एल्गोरिदम इंप्लीमेंट करते हैं, सुपर पोजिशनिंग और एंटेंगलमेंट खत्म हो जाती है. और एंटेंगलमेंट खत्म होने का मतलब यह है कि इंफॉर्मेशन लूज हो जाती है. तो एक हैकर को सिर्फ एक क्वांटम सिक्योरिटी का कोड गैस करने के लिए 10,000 साल लगेंगे. अब 10,000 साल तो कोई नहीं बैठ के करेगा ना. Nobody has that kind of time. So quantum computers
are the next technology that are unhackable. That is why cryptography, cybersecurity, now people are moving towards quantum cryptography, quantum cybersecurity, and quantum cryptography. Ji Muzammil, you have a question? सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जो आप बता रहे हैं कि क्वांटम कंप्यूटर को हैकिंग नहीं किया जा सकता, आप ये उसकी इंक्रिप्शन के बारे में बता रहे हैं या फिर क्वांटम कंप्यूटर के इटसेल्फ बता रहे हैं? नहीं, देखें, क्वांटम की इंक्रिप्शन के बारे में बता रहा हूं मैं आपको. यस सर, बस ये कंफर्म करना था. हाँ. Can AI based quantum computer do it? No. No computer in the world can right now at this moment hack a quantum computer.